वन। कृष्णा कृष्णा है क्या? हरे कृष्णा। सही लगा। गिर गया होगा। है। साइनोसॉइड। ऊपर ले जाओ, एक ऊपर को करो, ऊपर ऊपर कुछ दोनों तरफ, हाँ ऐसा है, और चिपका दो ऐसे। हम लोग वो फोटो से हरे राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वरदारि यशोदानंदना व्रज यशोदानंदना व्रज नरंजना। यशोदानंदना सुरज चरण यशोदानंदना व्रज नरंजना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. जय श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सारे ऑफलाइन डिवोटीज और ऑनलाइन डिवोटीज जो जुड़े हैं, आज हम लोग हमने लास्ट सेशन में टेक्स्ट 3 खत्म कर लिया था। आज हम लोग टेक्स्ट 4 स्टार्ट करेंगे। एक बार बस एक समरी करते हैं हम लोग ने लास्ट सेशन में क्या क्या डिस्कस किया। तो टेक्स्ट 1 में हम लोग ने देखा था कि मतलब हम लोग को क्या क्या कंट्रोल करना चाहिए, हमारे सेंसेस वगैरह। और फिर और उसमें हमने मेन इंपॉर्टेंट ये देखा था कि जो जिह्वा है, उदर है और जो पस्त है, ये एक साथ एक ही लाइन में आता है। और मतलब एक अगर हम लोग जीवा को कंट्रोल कंट्रोल में रखेंगे तो ये तीनों एक साथ कंट्रोल में हो जाएंगे, कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। और फिर हम लोग ने टेक्स्ट 2 और 3 में हमने ये देखा था कि डूस एंड डोंट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। टेक्स्ट 2 में हमने देखा था कि हम लोग को
क्या नहीं करना चाहिए, जो हम लोग का जो डोन्स था। और फिर टेक्स्ट 3 में हमने देखा था कि हम लोग को क्या करना चाहिए, जो डूस था। तो आज टेक्स्ट 4 में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक दो डिवोटीज के बीच में आदान प्रदान जो एसोसिएशन होता है, या जो वो लोग आदान प्रदान कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो टेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं। ये श्लोक का कोई कोई इनिशिएट करेंगे। हाँ, साथ में पढ़ना है। साथ में। ददाति प्रतिगृह्णाति यूयम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव सद्विधं प्रीतिलक्षणम्। Translation: offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasada, and offering prasada are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. Purport: in this verse, Srila Rupa Goswami explains how to perform devotional activities in the association of other devotees. There are 6 kinds of activities. Number 1, giving charity to the devotees. Number 2, accepting from the devotees whatever they may offer in return. Number 3, opening one's mind to the devotees. Number 4, inquiring from them about the confidential service of the Lord. Number 5, honoring prasada or spiritual food given by the devotees. And number 6, feeding the devotees with prasada. An experienced devotee explains and an experienced devotee learns from him. This is Guhyam Akhyati Prichati. When a devotee distributes prasada, remnants of food offered to the Supreme Personality of Godhead, in order to maintain our spirit of devotional service, we must accept this prasada as the Lord's grace received through the pure devotees. We should also invite pure devotees to our home, offer them prasada, and be prepared to please them in all respects. This is called Bhunkte Bhojayate Chaiva. Even in ordinary social activities, these 6 types of dealings between 2 loving friends are absolutely necessary. For instance, when one businessman wishes to contact another businessman, he arranges a feast in a hotel, and over the feast openly expresses what he wishes to do. He then inquires from his business friend how he should act, and sometimes presents are exchanged. Thus, whenever there is a dealing of priti or love in intimate dealings, these 6 activities are executed. In the previous verse, Srila Rupa Goswami advised that one should renounce worldly association and keep company with the devotees. Sangatyagat sato vrittehe. The International Society for Krishna Consciousness has been established to facilitate these 6 kinds of loving exchanges between devotees. This society was started single-handedly, but because people are coming forward and dealing with the give and take policy, the society is now expanding all over the world. We are glad that people are donating very liberally to the development of the society's activities, and people are also eagerly accepting whatever humble contribution we are giving them in the shape of books and magazines dealing strictly with the subject matter of Krishna consciousness. We sometimes hold Hare Krishna festivals and invite like members and friends to participate in the feasting by accepting prasada. Although most of our members come from the higher rungs of society, they nonetheless come and take whatever little prasada we are able to offer them. Sometimes the members and supporters inquire very confidentially about the methods of performing devotional service, and we try to explain this. In this way, our society is successfully spreading all over the world, and the intelligentsia of all countries is gradually appreciating our Krishna conscious activities. The life of the Krishna conscious society is nourished by these 6 types of loving exchange among the members. Therefore, people must be given the chance to associate with the devotees of ISKCON, because simply by reciprocating in the 6 ways mentioned above, an ordinary man can fully revive his dormant Krishna consciousness. In Bhagavad Gita 2.72, it is stated, Sangat Sanjayate Kamaha. One's desires and ambitions develop according to the company one keeps. It is often said that a man is known by his company, and if an ordinary man associates with devotees, he will certainly develop his dormant Krishna consciousness. The understanding of Krishna consciousness is innate in every living entity, and it is already developed to some extent when the living entity takes a human body. It is said in Chaitanya Charitamrita, Madhya 22.107, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kavunay Sravanadi Suddha Chitte Karaya Uday. Pure love for Krishna is eternally established in the hearts of living entities.
It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, the living entity naturally awakens. Since Krishna consciousness is inherent in every living entity, everyone should be given a chance to hear about Krishna. Simply by hearing and chanting Sravanam Kirtanam, one's heart is directly purified and one's original Krishna consciousness is immediately awakened. Krishna consciousness is not artificially imposed on the heart, it is already there. When one chants the holy name of the Supreme Personality of Godhead, the heart is cleansed of all mundane contamination. In the first stanza of his Sri Shikshastaka, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Cheto darpanamarjanam bhavamahadavagni nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Sarvatmasnapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. All glories to the Sri Krishna Sankirtana, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. So, purpose editing, right? हाँ बहुत लंबा है और लंबा है। ठीक है हाँ इसमें कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें एक्चुअली जो ये श्लोक में इसका ट्रांसलेशन है ना, इसी में ही हम देख सकते हैं कि अ, हमारा सोसाइटी इसी प्रकार से ऑलमोस्ट डिजाइन है ना। और फिर हमारा सोसाइटी ही नहीं, पहले के समय में भक्त लोगों के बीच में, जैसे हम लोग चैतन्य चरितमृत में भी सुनते हैं है ना, तो उसमें भी इसी प्रकार का ही डीलिंग होता था है ना। कोई कवि सार्वभौम भट्टाचार्य सभी को बुलाते थे अपने निवास में और फिर प्रसाद खिलाते थे, उसके बाद फिर कुछ देते थे और फिर अगले अगले समय में अगले अगले भक्त ऐसे उनके वहां पर भी जाते थे। तो ऐसे करके मतलब वहीं से हम देख सकते हैं, मतलब ये जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय का ये फाउंडेशन से ही ये सब चलता हुआ आ रहा है प्रभु। तो बहुत ही इसीलिए रूप गोस्वामी ने शायद ये है ना बोला है कि सभी को ही यही करना चाहिए ताकि ग्रोथ हो भक्ति में करके है ना। और फिर एक डिवोटी का दूसरे डिवोटी के साथ में किस प्रकार से डीलिंग होना चाहिए है ना, ये सिखा रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। हम्म षड्विधम प्रीति प्रीति लक्षणम प्रेम प्रेम भी बनाता है ना। हाँ तो इसका मतलब अगर भक्तों के बीच में ये मनमुटाव है और ऐसे कुछ समस्या है तो ये 6 प्रिंसिपल अगर हम उस समय में अप्लाई करेंगे फॉलो करेंगे तो संबंध भी अच्छा बनेगा। तो जो या फिर ये भी सोच सकते हैं अगर ये प्रिंसिपल हम शुरुआत से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो वो ऐसा situation सिचुएशन आएगा ही नहीं। नहीं। और जहाँ भी ऐसा समस्या हो रहा है इसका मतलब ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। और प्रभुपाद जी ने हमारा इस्कॉन का फाउंडेशन ही इस्कॉन इसी आधार यही 6 कार्य के ऊपर टिका हुआ है धर्म प्रभुपाद जी बोले। और इस्कॉन ही नहीं दूसरे जैसे दूसरे जब 2 बिजनेसमैन मिलते हैं संसारिक लोगों में भी अगर संबंध बनाना है संबंध जोड़ना है तो ये 6 प्रिंसिपल एप्लीकेबल है हर जगह। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया था ना, जब 2 बिजनेसमैन मिलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को फीस्ट के लिए बुलाता है, लव फीस्ट के लिए बुलाता है और उसमें डिस्कस करता है कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए। तो मतलब जितने भी दूसरे कार्य हैं बाहर के कार्य उसमें भी ये 6 प्रिंसिपल एप्लीकेबल है और ये 6 प्रिंसिपल उसमें भी काम करते हैं। तो भक्ति में तो अवश्य ही ऑफकोर्स काम करेंगे।
और फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी जब परपट लिख रहे हैं, वहां पर पूरा एक एक को फिर से लिस्ट करके बता रहे हैं ना, कि मतलब कहना चाहते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो पहले बता दिए हैं रूप गोस्वामी का ट्रांसलेशन, उसके बाद भी फिर से स्टार्टिंग से फिर लिख रहे हैं कि गिविंग चैरिटी डिवोटीज है ना, भक्तों को देना, ददाती फिर प्रतिगृणाती, फिर खुद खुद भी ग्रहण करना, वो लोग जो रिटर्न में देते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा जो है ना, गुह्यम आख्याति पृच्छति, मतलब अपनी चीजें पूछना, और फिर उनसे वो लोग जब बोलते हैं तो उसको भी सुनना, है ना, वो जो अपने मन मन की बात बोलते हैं विद कॉन्फिडेंशियलिटी। ये नहीं कि किसी ने बता दिया तो फिर चलो हम दूसरे को बताते हैं, नहीं, वो विश्वास करके बता रहा है, तो उसी प्रकार वो उसको भी अपने अंदर ही रखना है, और कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं तो फिर उसको हेल्प करना है, कुछ सोल्यूशन देना है ना। फिर उसके बाद फिर ऑनरिंग प्रसाद और फीडिंग प्रसाद टू डिवोटीज, खुद भी जाकर के प्रसाद लेना है, फिर जाकर दूसरे डिवोटी लोग जब बुलाता है तो वहां पर भी मतलब खुद भी जाकर के जब बुलाते हैं तो लेना है, और हमें भी इनवाइट करना है डिवोटीज को कि आप भी आइए खाइए, है ना, ये नहीं कि हम सिर्फ जा रहे हैं। अभी इसमें ये ददाती और प्रतिगृणाती माने लेना देना, रेसिप्रोकेशन, ये अगर गृहस्थ भक्तों के बीच में तो हम देख सकते हैं आराम से हो जाएगा, क्योंकि दोनों का घर है और दोनों दोनों डिवोटी पैसा कमाते हैं, गृहस्थ हैं दोनों, तो एक गृहस्थ डिवोटी दूसरे गृहस्थ डिवोटी को बुलाएगा, तो उसके रिटर्न में जिनको उन्होंने बुलाया वो क्या करेंगे, अगली बार इनको बुलाएगा। हाँ, इनको बुलाएंगे। ये गृहस्थ में तो बहुत आसान है। पर अब अगर कोई डिवोटी, कोई गृहस्थ डिवोटी ब्रह्मचारी डिवोटी को बुलाता है जो कि टेम्पल में रहते हैं, उनको तो बुलाता है, ददाती तो हो जाता है, और ये प्रतिगृहण आदि फिर से कैसे, उनके पास तो पैसा नहीं है, वो फिर कैसे करेंगे। तो इसमें ये भी एक चीज है। कोर्स भी नहीं है। हम्म, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान दो, उसके पास धन है, वो धन देंगे, समझे ना। ये बड़ी जरूरी है कि यही देना पड़ेगा। अभी ये सिस्टम रखोगे तो भविष्य में जाके फिर लोग डरने लगेंगे, अरे वहां जाएंगे तो एक दूसरे को देना पड़ता है। हाँ, हाँ, आप ब्रह्मचारी हो, आपके पास प्रचुर मात्रा में ज्ञान है। प्रभुपाद जी ने ये लाइफ मेंबरशिप वगैरह जो भी बनाया है ना, इसी के लिए बनाया है। भक्त लोग जाएंगे उनके यहाँ, और जो ज्ञान बताएंगे भगवान को, भगवान के बारे में अच्छी तरह से बताए, जो प्रभुपाद ने जो शिक्षा दिया है हमको वो अच्छी तरह से बताएंगे, वो कन्विंस हो जाएगा। हाँ, उसके मतलब वो ले लिया ना उसने, इसने दे दिया, उसके बदले में वो दे रहा है। हाँ, तो इससे क्या है, दूसरा लाइफ मेंबर, लाइफ मेंबर के पास तो बहुत सारे दूसरे भी लोग आते होते हैं, है ना, तो वो लोग भी सीख जाएंगे, वो भी बुलाएंगे, आप जाओगे यही करोगे, उनको शिक्षा दोगे। इसका मतलब कि अगली बार मंदिर में आप बुलाएंगे, उनको इनवाइट कीजिएगा, मंदिर में प्रसाद खिलाइएगा, है ना, ये तो हो जाएगा ना। तो ये आख्याति पृच्छति भी यही है। हाँ, इसका भी यही है, समझे ना। तो इस तरह से आप आदान प्रदान कर सकते हो। प्रभुपाद जी ने इसको इसी में टिकाया गया था, जानते हो, लाइफ मेंबरशिप सिस्टम क्या है आजकल, पैसा जमा करना खाली ही होता है, उनको बुला के खिलाना, अच्छा से डील करना वो नहीं रहता। डीलिंग इज पूरा इम्पोर्टेंट है। हाँ, भक्तों को डील करना, बाहर से आने वाले भक्तों को डील करना, और अपने भी भक्त यहाँ मंदिर में जो रहते हैं आपस में इस टाइप का को सिस्टम निकाल के प्रिंसिपल के अंदर, हाँ, बाध्यता बना करके क्या करना है, उन्हें भी ओपन हार्ट बनाना है एक दूसरे से, है ना। रूम के अंदर बैठे, वो भी नहीं आता उसके रूम में, वो भी उसके रूम में नहीं जाता, ये कोई भक्ति का लक्षण नहीं होगा। मिलजुल के, इसलिए सेवा में भी हम इसी तरह से बता सकते हैं। और कोई ऐसा करता है कि अरे मैं उसको क्लास भी करने नहीं दूंगा, मैं ही करूंगा, ये करूंगा, होता है। नए नए जो क्वालिफाइड भक्त है ना, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं देना ही नहीं चाहते, समझे। खाली मैं पुजारी कर रहा हूँ, मैं ही सबसे सीखूं, अब मैं पोजीशन में हूँ, मैं ही सबसे सीखूं, ये नहीं होता है। इससे क्या होता है, लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, समझे। इसलिए पूरा ओपन हार्ट से डीलिंग करना होता है। उनके भी कई बातें होती हैं, पूछने हमारे सामने रखें, हाँ, तो हम उनको कुछ कन्विंस कर सकें, इस टाइप से चांस देना चाहिए उन्हें, है ना। तब फिर क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। प्रभुपाद के अनुसार ये इस्कॉन
प्रचार में बहुत हेल्प हो रहा है, ये बात है। हाँ जी। और ये ददाति प्रति गृह्णाति में भी हम देखते हैं जो जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, जो निचले स्तर के डिवोटी होते हैं वो मतलब ऊंचे स्तर के डिवोटी, सीनियर डिवोटी से अपना जो भी समस्या है जिज्ञासा करते हैं, उसके बाद वो समाधान देते हैं। और कहीं कहीं हम देखते हैं जब डिवोटी अपना समस्या बताते हैं तो वो माने उनके अंदर इस सुनने का क्षमता नहीं होता है, और वो क्या करते हैं अपना एग्जाम्पल देने लग जाते हैं, उनका समस्या सॉल्व करने की जगह अपना एग्जाम, मैं भी तो इतना समस्या में हूँ, तुम थोड़ी हो, मेरा भी तो इतना समस्या है, ये तुम नहीं देखते। मतलब वो फिर वो जो अपना समस्या लेके जा रहा होता है सीनियर डिवोटी के साथ, वो उसका एक भी बोझ लेके आ जाता उसका है। बोझ लेके आता था, उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व होता नहीं हम्म। और बोझ लेके आता था। ये भी कोई कोई मतलब कहीं कहीं जगह ऐसा ये समस्या होता है। इसीलिए ये करना नहीं चाहिए इस बात को ना, डिवोटी हम ये तो दबा के रखना है, ये सिचुएशन हमारे साथ आता है, ये तो क्या है, अपने कर्म के वजह से आया है। इसमें तो उसके ऊपर थोड़ी थोपा है ना। इसलिए उसको ऐसे जगह में, जो प्रचार के जगह में या ये मीटिंग के अंदर में, इन बातों को निकालना ही नहीं चाहिए। कम से कम वो व्यक्ति इस टाइप का तो होना चाहिए, समझे। जिसका समस्या है। हाँ, जिसका समस्या है उस व्यक्ति को इतना तो समझ लेना चाहिए, तब तो आगे बढ़ सकेगा, दूसरे को भी आगे बढ़ा सकेगा ना। वो दबा के रख देना है, उसकी अपनी समस्या रख दो ना। तो प्रभुपाद के समस्या को देखो, प्रभुपाद क्या बोल रहा है, ये समस्या इसलिए आता है कि जब भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है उनको, शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं, गीता के बारे में ज्ञान नहीं, चैतन्य महाप्रभु हमसे क्या चाहते हैं इनके बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो समस्या में डूबा हुआ है। हाँ, इसलिए उनको उस स्तर से ऊपर निकलने के लिए प्रोत्साहन करना है। क्या करना है? प्रोत्साहन करना है कि हमारे मीटिंग के अंदर ऐसा समस्या लेके कोई भी नहीं आता है, थोड़ा तो है ना। मेच्योरिटी है। हाँ, मेजोरिटी थोड़ा आया है उन लोगों को, इसलिए तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना, श्रद्धालु है। तो बाई चांस कभी ऐसा हो भी, आप आपसे अकेले में बोलना चाहेंगे तो ठीक है, और दूसरे के साथ शेयर नहीं करना, शेयर सभी के बीच में। हाँ, वही ऐसे ऐसे बातें कोई व्यक्तिगत भी होनी चाहिए ना। वही जो जिसको ये बता रहे हैं, जिस प्रभु जी ने बोला, मैं किसी से मतलब मेरा प्रॉब्लम मैं किसी से शेयर कर रहा हूँ, तो फिर हमें भी उसी हिसाब से देखना चाहिए कि अच्छा मैं जिसको बता रहा हूँ वो भी उस स्तर के है कि नहीं है। मतलब ये नहीं कि सबको जज करते फिरे, एक बार आपने फेस कर लिया ऐसा, अरे वो तो मेरे ऊपर ही भार दे दिए, तो फिर अगली बार से दूसरे डिवोटी, अब हम जैसे मंदिर में सभी लोग भागवतम क्लास एक्सचेंज कर कर ये करते हैं, हम उससे भी देख सकते हैं अच्छा प्रभु जी शायद मुझे गाइड कर सकते हैं, या फिर है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग ऐसे पूछ सकते हैं। हाँ, और ज्यादातर प्रेफरेबल क्या होता है जिससे आप बहुत पहले से कनेक्टेड हो, प्रेफरेबल वही है कि आप उन्हीं से ही ज्यादातर ये कांटेक्ट में रहिए, या फिर अपना प्रॉब्लम जो भी शेयर करना है शेयर कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको पहले से ही देखा है, जब आप भक्ति स्टार्ट कर रहे थे तब से आपको देखा है, और फिर वो उसी हिसाब से आपको सोल्यूशन बताता है। और फिर और जब हम पूछ रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हम पूछ रहे हैं, और ये भी होता है कि अच्छा मैं पूछने जाऊंगा, और अगर प्रभु जी Negative या life वो का। डिवोटी अगर ऐसा बोलेंगे तो ही मैं करूंगा, है ना। अगर वो जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं बोलेंगे तो फिर नहीं करूंगा, है ना। समझ रहे हैं? तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब हम किसको पूछ रहे हैं, वो तत्वदर्शी है ना, तो उनको पता है कि आगे क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, तो वो बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे। हम जैसे हजारों डिवोटी को उन्होंने गाइड किया है, तो हमें पूरा 100% ट्रस्ट करके फॉलो करना चाहिए कि अच्छा प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस है, 50 ईयर 40 ईयर से है मूवमेंट में, इतने सारे भक्तों को गाइड किया है ना, खुद भी बहुत सीनियर डिवोटी महाराज लोग के अंडर में रह करके ट्रेनिंग हुआ है उनका। तो फिर हमें भी ऐसे मतलब वही ये हेल्प हेल्प कर पाएंगे करके, हेल्प कर रहे हैं सोच करके ये करना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा उनका इंस्ट्रक्शन ये अच्छा लगता है तो फॉलो करूंगा, अच्छा नहीं लगता है तो फिर 1-2 महीने में अवॉइड करूंगा, उनके बाद फिर वो भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत होता है। जैसे डॉक्टर का हर बात हम मानते हैं, हाँ। जो वो जो दवाई देता है वो खाते हैं, ऐसा नहीं कि मीठा वाला दवाई खाएंगे तो कड़वा कड़वा वाला दवाई नहीं खाएंगे, नहीं। हाँ। वो हमारे बीमारी को देख करके
इस बीमारी के लिए जो सूट होता है वही दवाई देगा, वही दवाई चाहे हमको अच्छा लगे ना लगे। अगर हमको बीमारी ठीक करना है तो उसको खाना होगा। हाँ जी। वैसे ही गुरुजन से जब हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं हम्म, तो वो हमारा अ, अभी हमको शायद अच्छा ना लगे, पर इन फ्यूचर के लिए हमारा वो भला ही होगा, वो सोच के। जैसे इसमें भी तो एक भगवत गीता में शायद एक श्लोक आता है, ये हाँ जो शुरुआत में थोड़ा शुरुआत में सुख लगता है हाँ और बाद में दुख लगता दुख है। होता है। हाँ जो शुरुआत में क्या विष जैसा प्रतीत होता है, बाद में जाके अमृत तुल्य होता है। हाँ, हाँ सदुगुणी सुख और रजोगुणी सुख हाँ तमोगुणी सुख का। हाँ भगवत गीता में भी है, शायद चैप्टर 17 में है। 17 जब तक आग्रह विषम युवा हाँ परिणाम में अमृतो, ऐसे कुछ है। जी। तो अच्छा चैप्टर 18 उसी को ही मतलब हमें ये होना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि अच्छा उनको उनको पता नहीं हमारा प्रॉब्लम क्या है। वो तो हमारे घर में नहीं रहते हैं, हमारे तो ऐसे है करके हम सोचते हैं। लेकिन फिर ये भी क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है प्रभु, आप जो भी बोल रहे हो वो सोच करके, हम्म, है ना। ये साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनको थोड़ी ये है। वो स्टडी पहले कम से कम भी कितने सारे हजारों हजार की स्टडीज पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद जाकर कुछ सॉल्यूशन देना ये करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस वो पाने के लिए तो केस स्टडीज वो स्टडी करते हैं। लेकिन हमारे डिवोटी ने तो ऐसे हजारों हजार डिवोटीज को ऐसे गाइड किया हुआ, हमारे सीनियर डिवोटीज ना। तो वो भी देख सकते हैं हम लोग कि प्रभु जी के द्वारा या कोई भी डिवोटी के द्वारा गाइड किया हुआ डिवोटी या उनके द्वारा प्रचारित डिवोटी आज कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो देख करके भी हमें ये होना चाहिए कि अच्छा उनका तो कर कॉन्फिडेंस। दिया। हाँ है ना। एक और चीज भरोसा करने का मतलब, एक और चीज हम क्या फेथ रख सकते हैं, जैसे अब गुरु तत्व जो है वो स्वयं भगवान से अभिन्न है, भगवान परमात्मा ही गुरु के स्वरूप है। चैत्य गुरु बाह्य बाह्य स्वरूप लेके हमको शिक्षा दीक्षा देने के लिए गुरु भगवान ही स्वरूप लेके आते हैं। तो जो भी हम समस्या मतलब उनको शेयर करते हैं, ये तो हमको मालूम ही है कि उनके अंदर भी परमात्मा है। तो अल्टीमेटली ही इज डायरेक्टली गाइडेड बाय परमात्मा। तो जो भी वो बोलते हैं, भगवान तो हमारा भला तो देख ही रहा है ना। तो भगवान भगवान का ही इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा हम पाते हैं। हाँ जी। जी। ऑनलाइन डिवोटीज को भी कुछ शेयर करना है। विश्वदीप प्रभु, हरे कृष्णा, हाँ, अभिमन्यु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्म प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि मतलब अभी जो भी डिस्कशन हुए ना प्रभु, शुरू में भी जैसे उन्होंने कहा कि प्रभुपाद की वाणी उनकी मतलब उनके जो मिशन में है इतनी अच्छी उसमें शक्ति है कि मान लीजिए आज के जो कलयुग के जमाने में कोई एक दूसरे को पानी तक नहीं देना चाहता है, बट हम लोग लव फीस्ट करते हैं संडे संडे विदाउट कॉस्ट, एक सबको खिलाते हैं एक दूसरे डिवोटीज मतलब बाहर में। आप मान लीजिए अब वो तो पहले के समय में होता था जब एक दूसरे को लोग बुलाते थे खाते थे, आजकल तो वो भी लोग नहीं करते हैं। किसी को खिलाना पड़ेगा, 2 रुपया लगाना पड़ेगा। बट आज के प्रभुपाद के मिशन में इतना मतलब इसमें शक्ति है कि आज भी जैसे हमारे संडे प्रोग्राम में भी हम लोग जो लव फीस्ट करते हैं उसमें भी हम लोग इतने लोगों को बुला बुला कर जो हम लोग खिलाते हैं, उसमें मतलब उन लोग के लिए भी मतलब जो प्रसाद पाने का अवसर है उन लोग को भी मिलता है, वो लोग भी नहीं आ पाते। और तो ये जो संडे वाला प्रोग्राम था जो प्रभात ने शुरू किया था, मतलब उससे बहुत हेल्प मिला, खासकर बिजनेसमैन वगैरह ये लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा उसमें हुआ, क्योंकि सब लोग को 6 दिन तो काम ही करते हैं, एक ही दिन उन लोग को बस फ्री मिलता है। बट उसमें भी अगर मंदिर में आना पड़े तो बहुत लोग थोड़ा आलसी करते हैं, लेकिन प्रभात के मतलब बोलता है ना, बहुत लोग ऐसा होता है कि भाई आज संडे है एक ही दिन आराम करूंगा। लेकिन मंदिर जो लोग थोड़े रेगुलर आने लग जाते हैं, 2-3 दिन, 2 बार 3 बार संडे आने लगते हैं, तो फिर उनको मतलब लगता है नहीं घर में बैठ के कुछ नहीं मिलता है, आओ यहाँ पे आओ, भक्तों का संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसमें मतलब बहुत ही हमारे भक्ति में भी बढ़ाने में बहुत काम आता है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। ये यदि देखा जाए तो जैसे हमारे विश्वदीप प्रभु ने बोला, ये फोर्थ श्लोक का बेसिस में हमारा ये संडे प्रोग्राम भी बेस्ड है। ये भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सुनते भी है बाहर के लोग, है ना। गुड़िया माँ का हाँ गुरु माँ ख्याति प्रचिति भी हो जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा बहुत हो जाता है ना। और फिर यहाँ पर जो प्रसाद भी घूमते बोल जाते हाँ हैं। प्रसाद भी लेते हैं। तो मतलब इसी बेसिस में ये है कि नहीं। और फिर वो लोग आते हैं 2 बार 3 बार संडे में आते हैं, देखते हैं अच्छा स्पॉन्सर अनाउंस हो रहा है, अच्छा मैं भी अगला संडे में या फिर उसके दूसरे तीसरे संडे में मेरे घर में बेटे का बर्थडे है या किसका बर्थडे है या हमारा बर्थडे, चलो हमारा एनिवर्सरी है, चलो मैं भी स्पॉन्सर करता हूँ करके
ऐसे भी निकलते हैं प्रभु। तो वह वहीं से ये ददाति प्रति गृहणाति वाला सिस्टम भी हो जाता है ना। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला विश्वदीप प्रभु ने। हमारा जो संडे प्रोग्राम भी इसी हिसाब से ही चल रहा है प्रभु। अच्छा, वेरी और नाइस। प्रभु हम लोग संडे प्रोग्राम में जो प्रभु मान लीजिए प्रसाद खिलाते हैं, उसके बदले में वो हमें जो भी मतलब अपने इच्छा से, जैसे हमारे त्योहारों में जो हेल्प करते हैं, सामान देना हो, तो वो हम तो उनके घर में तो उतना जा नहीं सकते, इतने लोगों को इतने डिवोटीज आते हैं, बट एटलीस्ट जितने भी हो वो अपने तरफ से हम लोग उनको अगर प्रसाद खिलाते तो वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, पर चाहे दान पुण्य करना हो, चाहे फाइनेंशियली हो, या सामान देने से रिलेटेड हो। सही है बोला। ऐसे ही मैंने हम जब अभी इस बार प्रभु जी के साथ हम लोग कानपुर गए थे, तो वहाँ तो बड़े बड़े मंदिर में तो कॉन्ग्रेगेशन बहुत सारे होता है, बहुत सारे डिवोटी होते हैं। और मंदिर में मतलब डोनेट करने वाले भी डिवोटी बहुत सारे होते हैं। और ऐसे कई डिवोटी होते हैं जो डोनेट करते हैं पर छूट जाते हैं, क्योंकि मतलब हम उनसे संपर्क नहीं रखते हैं तो छूट जाते हैं। तो इस साल वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या रिजोल्यूशन निकाला, रथ यात्रा के एक महीने पहले, हम तो वहाँ एक महीने पहले ही पहुंचे थे, तो जिन जिन जो जो डिवोटी अपने अपने कॉन्ग्रीगेशन मतलब कॉन्ग्रीगेशन के इंचार्ज जो जो डिवोटी हैं, वो लोग क्या करेंगे, अब उनसे ये संबंध अच्छा रखने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रसाद का जो खुरमा प्रसाद होता है, उसका छोटा छोटा पैकेट, बहुत सारा पैकेट बना के एक महीने पहले से ही अपने अपने कॉन्ग्रीगेशन को जाके ये प्रसाद देने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम बनाया। प्रभु जी, क्या हाँ, किया? हमने भी इस बार किया है प्रभु, हरे कृष्णा। हम लोग ने हमने भी खिचड़ी इस बार प्रसाद ही बांटा है। अच्छा, खिचड़ी एक बार। प्रसाद पैक करके हाँ। सबको दिया। कितना कितना बॉक्स हमने दिया विश्वदीप प्रभु? 1000? आई थिंक अराउंड 250। अच्छा, 250 बॉक्स 250 हुआ है। बॉक्सेस। अभी और ये अभी तो चलता रहेगा एवरी संडे ऐसा कुछ, हाँ, जब तक रथ यात्रा नहीं आएगा और ये रिटर्न रथ यात्रा तक कुछ करेंगे, ये प्लान है। और हुआ भी है, पिछले संडे से हुआ ये शायद। भी हुआ था। हाँ। तो देखिए यही प्रिंसिपल कितना अच्छे से अप्लाई हो रहा है, और ये प्रोडक्टिव भी है, और ये बहुत अच्छा, ये भी रिजल्ट भी देता है। ठीक है, अभिमन्यु प्रभु, आप कुछ इसमें शेयर करेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु जी? प्रभु जी आप अनम्यूट अनम्यूट है। अनम्यूट म्यूट है, है, सॉरी, अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट करो। नहीं प्रभु जी, कुछ वो तो नहीं है, लेकिन मैं उधर ही आने की तैयारी कर रहा हूँ अच्छा, भाई। जय हो। आइए आइए प्रभु, वेलकम। प्रश्न नहीं पूछूंगा, सीधा आ जाऊंगा। वही प्रश्न पूछ लेंगे आप लोग से ना। आइए आइए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो और यहीं पर प्रभुपाद जी फिर यहाँ पर दो श्लोक हाँ, बहुत चैतन्य इम्पोर्टेंट। चरितामृत से कोट करता है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ता कराये उदय। है ये वही, जब हम डिवोटी के एसोसिएशन में रहते हैं, इससे जस्ट पहले प्रभुपाद जी संगा संजाते काम। हाँ, वही संगा संजायते काम बोलते हैं। फिर उसके बाद ये मतलब जब तक हम ये प्योर प्योर डिवोटी के एसोसिएशन में हम लोग हियरिंग एंड चैंटिंग नहीं करेंगे, तो फिर ये मतलब उदय नहीं होगा इसका, ये जो कृष्ण प्रेम है ना, हमारे में पहले से ही अंदर में है, लेकिन उसको जर्मिनेट करने, ऐसे सीड है, लेकिन उसको जर्मिनेट करने के लिए एक फर्टाइल लैंड हो, ऐसा एटमोस्फियर चाहिए। सो दैट एटमोस्फियर क्या है, डिवोटी के एसोसिएशन में श्रवण है ना, कीर्तन, ये सब है ना, जप करना। तो ये जब तक नहीं करेंगे तो वो उदय नहीं होगा, वो तब तक जर्मिनेट नहीं होगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वही गुह्यम ख्याति पृच्छति और एसोसिएशन है ना। हर अब तक हमने क्या देखा, जो 2 3 4 4 में अभी तक एसोसिएशन कॉमन चीज है। हाँ, हर श्लोक में श्लोक में association। association है। माने डिवोटी के साथ एसोसिएशन करना, और जो भी मतलब नॉन डिवोटीज हाँ, डिवोशन के विपरीत हैं उनके साथ है ना। एसोसिएशन करना। हाँ, तो उनसे एसोसिएशन छोड़ना। शायद वो पिछले श्लोक का प्रभुपाद जी ने कुछ पार्ट यहाँ पर कोड भी किया था, देखिए प्रभु जी। संगत यागत हाँ, संग त्याग सतोवृत्ति, सतोवृत्ति। हाँ ये हाँ, है ना। ये संग त्याग, ये होना चाहिए, मतलब जो अनडिजायरेबल एसोसिएशन है उनसे मतलब हट के रहना, उनसे एसोसिएट नहीं करना। और ये हम्म। संगात संजाय काम माने जैसा हम संग करेंगे उसी प्रकार का हमारी इच्छा है। इंग्लिश में भी मैन इज नोन बाय हिज
कम एसोसिएशन ऐसे हाँ जी। मतलब जैसे संघ करेंगे उसी प्रकार की इच्छा होगा। हमारा ये अभी हमारे अंदर इतना भौतिक इच्छा आता है, क्यों? क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर हाँ, इस से प्रकार का हम लोग संग कर रहे हैं जो भी, हाँ, तो इतना संघ कर रहे इसीलिए हैं, तो इसीलिए इसलिए प्रभुपाद जी ने ये श्लोक को यहाँ, अगर डिवोटी के ही एसोसिएशन में ज्यादा समय रहेंगे, कान से भी डिवोटी का संग, डिवोटी मतलब भगवान का संग करेंगे, आंख से भी, और नाक से भी, और मुंह से भी, जीवा से भी, और शरीर से भी, सब सभी इंद्रियों से भगवान से संबंधित विषयों का संग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आस्ते आस्ते हमारे हृदय में भी उसी प्रकार की इच्छा आने लगेगा। जैसे बात समझा अभी आपने? जैसे आपने बोला तो कुछ कुछ दोस्तों से मैं कॉल में बात करता हूँ कि जैसे जन्माष्टमी आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, तो मतलब नेसेसरी नहीं कि मणिपुर में ही हो, तो उनको फोन करके बोलता हूँ कि अच्छा तुम जयपुर में हो तो जरूर उस दिन जन्माष्टमी है, तुम जाना जयपुर टेम्पल इस्कॉन जाना, और फिर दिल्ली में हो तो फिर कहाँ पर हो उस हिसाब से वो टेम्पल तुम विजिट करना। तो ऐसा करके जब बोलते हैं तो उनकी भी थोड़ी बहुत बात सुनते हैं, तो बोलते हैं अरे प्रभु अरे हरिचरण क्या करें, इतना ऑफिस में काम है, अभी तो सपने में भी मैनेजर का ही चेहरा दिखता है। तो ये होता है क्योंकि वहीं पर एसोसिएशन हो रहा है, उनका वही सोच हो रहा है, सब कुछ वहीं पर ऑफिस वाला ही हो रहा है, तो वही हो रहा है ना भौतिक चीज। तो आध्यात्मिक में यदि हम लोग डिवोटी का एसोसिएशन करेंगे टेम्पल में, ये डिवोटी को मतलब डेटी भगवान का के दर्शन कर रहे हैं, आरती, प्रसाद में तो फिर सोते समय भी यही आएगा, हमेशा यही यही चलता रहेगा। प्रभु जी वो कहते हैं ना, जैसी जैसी संगति वैसी गति। अब वो हाँ हमारे ऊपर है कि सुगति करना है या दुर्गति, वो तो हाँ, सही बात है सही प्रभु, बात। है ना। तो यही वो कुछ दोस्त मेरे ऐसे बोलते थे, तो वही मुझे याद आ गया जब ये हम्म, इसलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम भी, अब वो तो है, कृष्ण प्रेम तो हमारे अंदर है, और उसको जागृत करने के लिए संग, संग में रहना, कृष्ण प्रेम, संग में जब so, ये एक सीरीज वर्स है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम करके को बना रघुनाथ शुद्ध चित्ते का होगा। हाँ इसका एक सीरीज है, ये श्लोक है सीरीज है। और कृपा जी ने ये चैतन्य ये शिक्षाष्टकम का भी फर्स्ट श्लोक कोट किया है। हाँ, चेतो दर्पण में तो कृष्ण प्रेम अंदर है, पर ये भौतिक कर्मस के कारण वो ढका हुआ है। तो प्रभा जी कोट करते हैं, चेतो दर्पण मार्दनम, ये भगवान कृष्ण के नाम संकीर्तन से उस कर्मस को जब दूर करेगा, हाँ साफ कर देगा, तब जाके वो कृष्ण प्रेम उदय हो पाता है। तो ये प्रभा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन प्रभा और जी ये ने किया होगा भी सीरीज। सिर्फ वही संघ और श्री कृष्ण संकीर्तनम से। अब श्री कृष्ण संकीर्तन में और प्रभु ये निरंतर निरंतर बार बार करना पड़ता है ना प्रभु। जैसे वो दर्पण है तो उसमें धूल चढ़ती रहेगी, उसको बार 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 साफ करना होता साफ है ना करना प्रभु। पड़ता है। हाँ। हम्म, और शुरुआत में तो जब साफ करेंगे तो कितने सालों बाद जब हम कोई रूम में जाते हैं, जैसे प्रभु जी पहले पद एग्जांपल दिया करते थे, एक रूम है उसको 10-15 साल से बंद है, और उस रूम को जाके जब तक बंद है तब तक कोई समस्या नहीं होगा, और जैसे ही आप झाड़ू लेके एक बार झाड़ू लगाना चालू करेंगे तो इतना धूल जमा हुआ है, वो उड़ने लगेगा और आपको इतना छींक आएगा, इतना डिस्टर्ब डिस्टर्ब करेगा। जब तक आपने उसको छुआ मतलब साफ करने का प्रयास किया नहीं था, तब तक वो शांत रहेगा। जैसे आप साफ करना चालू करोगे, और ज्यादा वो क्या कहते हैं, उफान मारेगा। हाँ, उफान मारेगा। तो उसको साफ करते 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 बन मारेगा था, मतलब इसका मतलब डिवोटी जब डिवोशनल लाइफ में जो एक्टिविटी शुरू करता है तो उसको बहुत सारे डिस्टरबेंस आते हैं। ये है धूल उड़ने का मतलब, छिकाने का मतलब, ये नाना प्रकार के आते हैं। माँ बाप की तरफ से डिस्टर्ब होता है, कहाँ से फिर दूसरी तरफ से मन डिस्टर्ब मन होता से है। भी डिस्टर्बेंस आता है। अपने रिश्तेदारों के तरफ अपना भी डिस्टर्ब है, क्योंकि धूल तो जमा ही हुआ है अंदर में, क्योंकि इसमें ये सब नहीं करना होता है, वो वहां जाके नहीं करने देता, आप करके आए हो आज तक, ये भी थोड़ी आपको डिफिकल्टी होती है ना। जब ये फिर साफ धूल वूल निकल जाएगा, सब हम झाड़ू लगा के साफ कर देंगे, उसके बाद
ये अगली बार दूसरे दिन जाके झाड़ू मारोगे कितना धोने लगे, क्योंकि आप साफ कर दिया ना काफी। ठीक उसी प्रकार से श्रवण आदि शुद्ध चित्त का अर्थ है कि श्रवण आदि करके जब आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, शुद्ध एकदम क्लीन हो जाता है, अब मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, तब आपको पता चलेगा मैं ये शरीर आदि के नहीं हूँ, मैं शरीर के पीछे विषयों के पीछे भागना मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य भगवान के शरणागत होकर सेवा करना है। ये अपने आप रियलाइजेशन हो जाएगा। तो ये भी प्रोसेस तो बहुत लंबा प्रोसेस है। ये 84 लाख योनि के अंदर प्रत्येक जीवात्मा के अंदर में कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है। तो जब मनुष्य जीवन में आ जाते हैं तो उसको चांस होता है कि इसको प्रकाश करने के लिए। तो मनुष्य जीवन में आकर भी जब उनको सत्संग नहीं करते ऐसे करते तो ऐसे चले जाने देते। जो डिवोटी हैं इतना सौभाग्य है कि सौभाग्यवान है, यदि उनको हार्ट क्लीन करना होता है तो अभी ही करना होता, और वो कृष्ण प्रेम इसी समय डिवोशनल लाइफ में ही कृष्ण प्रेम को हासिल करना है। ठीक है फिर। तब जितना पढ़े थे वो कवर हो चुका है। ठीक है फिर आज का सेशन हम लोग इधर ही एंड करेंगे। नेक्स्ट कहाँ से पढ़ना है? नेक्स्ट हम लोग ये नॉट The ओनली members? इज द चैंटर ऑफ द महामंत्र प्यूरिफायर, ये जो चित्तदर्पणम का दूसरा पैरा हाँ, उसके नीचे नॉट ओनली द सेंटर ऑफ द हाँ। माउथ। ओके, ये लगभग हाफ रहेगा। हाँ हाफ रहेगा, अगर हो सके तो हम लोग पूरा भी कंप्लीट कर सकते हैं। ज्यादा नहीं है, कम। ज्यादा नहीं है। तो ठीक है फिर हम लोग आज का सेशन इधर ही एंड करेंगे। ऑनलाइन डिवोटीज को कुछ पूछना हो, प्रश्न हो, विशुद्धि प्रभु, नहीं प्रभु जी, अभिमन्यु प्रभु। आज का सेशन बहुत अच्छा था। प्रभु जी भी थे, उनका मतलब मार्गदर्शन में मतलब ऐसा कुछ अभी तक कोई सवाल तो नहीं प्रभु, सब क्लियर हो। ठीक है प्रभु। अभिमन्यु प्रभु आपको कोई प्रश्न पूछना है? नहीं प्रभु, मैसेज किया। और बहुत अच्छा भी लगा प्रभु जी, बहुत समय बाद हमारे साथ, मतलब मैं अभी तो फिजिकली अभी प्रेजेंट तो नहीं हो पाया, बट बहुत अच्छा लगा कि बहुत क्लास में बीच बीच में जो प्रभु जी का मार्गदर्शन होता है बहुत उससे मतलब एक और अच्छी क्लियरिटी मिलती है। जो हम लोग डिस्कशन करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, उससे भी बहुत अच्छी मार्गदर्शन मिलता ठीक है, अभिमन्यु प्रभु मैसेज कर रहे हैं, उनका नेटवर्क इशू है कुछ, तो मैसेज कर रहे हैं कि उनको कुछ कोई डाउट नहीं है। जी जी। ठीक है, हम लोग आज का सेशन इधर ही एंड करेंगे। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि अगले सेशन फिर आप लोग मतलब ऑफलाइन अटेंड कर पाए। ऐसे हम लोग मणिपुर में इनर डिस्टरबेंस, आउटर डिस्टरबेंस, सब डिस्टरबेंस होता रहता है तो। अभी तो और बढ़ रहा है। पहले तो 2 कम्युनिटी के बीच में था, अब कम्युनिटी चेंज हो गया। एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में चेंज हो गया। और कहीं कहीं जगह तो मैंने सुना, आज सुबह एक प्रोजेक्ट बोल रहे थे गैस सिलेंडर मिलता नहीं है, हाँ। मिलता भी है तो 6,000 में। हाँ और 6,000 5,000 में मिल रहा है प्रभु। हाँ 5,000 मिल रहा है गैस सिलेंडर, और पेट्रोल मिल रहा है 250 रुपये लीटर। देखिए, हाँ, ये सिचुएशन चल रहा है। आप लोग सब भी आने का प्रयास करिएगा ऑफलाइन। लेकिन जिंदा जी। ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है ब्रो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चक्रपतर्वस्य कृपा सिंधु वेव शपतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की, श्री प्रभुपाद की, श्री प्रदेश की। हरे कृष्ण।